So welcome back class 10 students on your online digital channel Study Nest. Today we'll do a chapter of class 10th, Madam Rides the Bus. In this sensitive story, an 8-year-old girl it's about the first bus journey of an 8-year-old girl into the world outside her village. She sees the gap between our knowing that there is death and an understanding of it. So that was her first encounter moving out of her house. There was a girl named Wali Ammai who was called Wali for short. एक लड़की थी जिसका नाम था वली अम्माई, उसको लोग प्यार से वली बुलाते थे. She was 8-year-old and very curious about things. वो 8 साल की थी और उसे हर चीज़ की जानकारी चाहिए थी. बहुत ही जिज्ञासु लड़की थी वो. Her favorite pastime was standing in front of doorway of her house. उसका समय पूरे दिन ऐसे बीतता था, वो अपने घर के बाहर दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी और जो भी आने जाने वाली चीज़ें थी उनको देखती रहती थी. Watching what was happening in the street outside. There was no playtime for her own age on a street. उसकी उम्र के बच्चे उस समय दो नहीं होते थे, तो वो जो भी कुछ हो रहा होता था उसी को देखती रहती थी. And this was about all she had to do. और यही वो पूरे दिन करती रहती थी जब वो खाली रहती थी, क्योंकि उसके उम्र के बच्चे थे नहीं खेलने वाले. But for Wali, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. और वली के लिए दरवाजे पे खड़े होकर आने जाने वालों को देखना किसी भी बहुत ही अच्छा गेम से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था. उसको बहुत अच्छा लगता था. Watching the street gave her many new unusual experiences. सड़क पे देखते देखते उसको बहुत सारे नए एक्सपीरियंस मिलते थे, अनुभव मिलते थे. Day after day she watched the bus. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Wali. तो सबसे फैसिनेटिंग चीज़ जो थी, उसको सबसे ज़्यादा आकर्षक चीज़ थी जो बस निकलती थी, जो पैसेंजर्स को, यात्रियों को लेके जाती थी और वापस आती थी हर घंटे में. और वो उनको देखती थी, पैसेंजर्स को देखती थी, यात्रियों को देखती थी. तो ये सबसे उसको अच्छी चीज़ लगती थी और उसकी कभी ना ख़त्म होने वाली खुशी थी. डे आफ्टर डे शी वॉच द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू अ हेड एंड ग्रू देयर. हर दिन वो बस को देखती थी और एक उसके मन में एक इच्छा आ गई एक दिन. शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस. वो उस बस पे यात्रा करना चाहती थी सिर्फ एक बार. The wish became stronger and stronger until it was overwhelming desire. और उसकी ये इच्छा धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती गई और एक दिन तो ऐसा हो गया कि वो उसकी एक अभिलाषा बन गई उस बस पे यात्रा करने की. Wali would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. वली बहुत ध्यान से उन लोगों को देखती थी जो बस पे चढ़ते थे या उतरते थे, उन यात्रियों को. Their faces were kindled in her longing, dreams and hopes. और उनके चेहरे को देख के उसके मन में भी इच्छा होती थी वो भी इस बस पे यात्रा करे. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sight of the town to her, Wali would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used if often as a slang expression of disapproval. कभी उसकी कोई सहेली बस पे चढ़ जाती थी और वापस आने पे अपनी यात्रा का वर्णन करती थी कि उसने बस पे कैसे यात्रा करी, तो वली बहुत ज़ोर से गुस्से में चिल्लाने लगती थी, प्राउड प्राउड ना, जबकि उसको इसका मतलब मालूम था और ना ही उसको उसकी बहन को उसकी सहेली को इसका मतलब पता था. Over many days and months, Wali listened carefully to the conversation between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. कई दिन निकल गए, महीने निकल गए. वली जो भी लोग उसके अगल बगल रहते थे उनसे क्वेश्चन पूछती थी बस के विषय में और उसकी इच्छा दिन प्रतिदिन बस पे यात्रा करने के लिए बढ़ती चली जाती थी. This way she picked up various small details about the bus, which is almost nothing at the town. This way she picked up various small details about the bus journey. The town was 6 miles from her village. इस तरह से उसने बस की छोटी मोटी हर जानकारी इकट्ठी कर ली थी.
बस जाती थी एक कस्बे में जो करीब 6 मील दूर था। द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे, एक तरफ का किराया 30 पैसे था, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, शी हर्ड ऑन वेल ड्रेस्ड मैन से। और एक बहुत ही जो अच्छे जो मीन संपन्न लोग जो बस से उतरते थे वो कहते थे किराया तो कुछ भी नहीं है। बट टू वली हु scarcely saw that much money from one month to the next it seemed a fortune। लेकिन वली के लिए इतना पैसा जो उसने एक महीने से दूसरे महीने तक भी नहीं देखा था, बहुत बड़ी बात थी। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, उस कस्बे तक जाने के लिए 45 मिनट लगते थे। ऑन रीचिंग टाउन इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसा शी वुड रिटर्न होम ऑन द सेम। अगर वो सीट पे अपनी बैठी रहती उस टाउन में पहुंचने के बाद 45 मिनट तक और उसी बस से वापस लौट जाती तो उसको 1.5 घंटा लग जाएगा, अगर उसके पास वापसी का किराया भी होगा यानी कि 60 पैसे। दिस meant दैट शी कुड टेक द अनदर 1 o'clock आफ्टरनून बस, तो उसको लगता कि वो 1 बजे की बस पकड़े और रीच द टाउन एट 1:40, 1:45 तक कस्बे में पहुंचेगी और फिर वो करीब 2-2:30 बजे तक वापस आ जाएगी। तो दिस शोज शी वॉज वेरी कैलकुलेटिव, उससे लगता था कि वो बहुत समझदार लड़की थी, बहुत कैलकुलेटिव थी। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" and a tiny hand was raised commandingly. अब एक सुहाना दिन था, बसंत ऋतु का मौसम था और बस गांव के मुख्य मार्ग पर मुड़ ही रही थी कि एक छोटी सी आवाज़ चिल्लाते हुए आई, बस रोको, बस रोको। एक छोटा सा हाथ उठा आदेश देने के लिए। The bus slowed down to crawl, बस धीरे धीरे रुकी। The conductor sticking his head out of the door, कंडक्टर ने अपना सर बाहर निकाला। Said, hurry then, tell whoever it is, come quickly, उसने कहा जिसको भी अंदर आना जल्दी आओ। It's me, shouted Wali, I am the one who has to get in। वली ने जोर से कहा मुझे बस में आना है। By now the bus had come to stop and the conductor said, oh really, you don't say so। कंडक्टर ने देखा जब एक छोटी सी लड़की, तो उसने कहा अरे तुम ही बस पे बैठने वाली हो। येस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, उसने कहा हाँ मुझे ही टाउन जाना, मुझे इस कस्बे में जाना है। सेड वाली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी बस के बाहर खड़ी थी। एंड हियर माई मनी, शी शोड हिम सम कॉइन्स, और उसने उसको पैसे दिखाए, उसने कहा ये मेरे पैसे हैं। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच आउट अ हैंड टू हेल्प हर। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम जल्द पहले तुम अब जाने के लिए बस में बैठना पड़ेगा। उसने अपना हाथ आगे दिया ताकि छोटी सी बच्ची को बस पे चढ़ाया जा सके। नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। उसने कहा वली ने मेरी मदद की ज़रूरत नहीं, मैं खुद चढ़ जाऊंगी। इससे पता चलता है कि वो अपने आप को बच्ची नहीं, एक बड़ी लड़की मानती थी। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, ही सेड, देयर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम। कंडक्टर जो कि बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति था, उसने कहा कोई बात नहीं, आप नाराज मत होइए, आप आइए। मैडम मैडम कह के उसको संबोधित किया। वहाँ पे सामने एक सीट है, आप उस पर बैठ जाइए और सब लोग किनारों, मैडम को रास्ता दो। इट वॉज अ स्लैक टाइम ऑफ अ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। उस समय दोपहर का समय था, तो कम ही लोग यात्रा कर रहे थे, लगभग 6-7 पैसेंजर्स बैठे थे बस में। दे ऑल वर लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, सब लोग वली की तरफ देख रहे थे और कंडक्टर की तरफ देख के हंसने लगे। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, वली को शर्म आ गई। अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन, वो गई और एक खाली सीट पे जाके बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर ने मुस्कुरा के पूछा कि क्या मैडम अब हम लोग बस स्टार्ट कर सकते हैं। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद रोड, और फिर उसने अपनी सीटी बजाई और बस आगे बढ़ने लगी। इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद ग्रीन स्ट्राइप्स अलॉन्ग द साइड। नई बस थी, सफ़ेद रंग से पेंट हुई थी और उस पर हरे रंग की पट्टियाँ बनी हुई थी। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, जो अंदर थे बस के जो वो लगे हुए थे, सिल्वर कलर की अंदर छड़ लगी थी। डायरेक्ट इन फ्रंट ऑफ वाली अबव द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, और सामने ही ड्राइवर के ऊपर एक घड़ी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, सीट जो थी वो बहुत ही सॉफ्ट थी, मुलायम थी और आरामदायक थी। वली डिवर्ड एवरीथिंग विद आइज, वली हर चीज़ को अपनी आंखों में बहुत गौर से देख रही थी। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड
that covered the lower part of her window. लेकिन जब उसने बाहर झांकने की कोशिश करी तो उसने पाया कि एक मोटा कपड़ा विंडो पे लगा हुआ जिससे वो बाहर देख नहीं पा रही है. So she stood up on the seat and peered over the blind. तो वो सीट पे खड़ी हो गई और बाहर की तरफ झांकने लगी. The bus was now going along the bank of a canal. The road was very narrow. On one side there was a canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountain and the blue sky. अब बस एक नहर के पास से गुजर रही थी जहाँ पे बहुत सुंदर पेड़ लगे थे, पाम ट्रीज थी, घास के मैदान थे, थोड़ी दूर पर पहाड़ भी दिख रहे थे, यानी बहुत अच्छा व्यू था. ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच. थोड़ी दूसरी तरफ एक खाई थी और उसमें दूर दूर तक हरियाली हरियाली दिखाई पड़ रही थी. ओ इट वॉज सो वंडरफुल. सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस. लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन. अचानक एक आवाज़ आई और किसी ने उससे कहा कि तुम, वो अभी अपनी सीट पे खड़ी हुई होके देख रही थी, किसी ने उससे कहा कि बैठ जाओ, खड़ी मत हो. सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन. उसने देखना चाहा कौन बोला था. इट वॉज एन एल्डरली वुमेन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर. एक थोड़ी बुजुर्ग महिला थी जो शायद उसके लिए बहुत चिंतित थी, और लेकिन वाली उनकी बात सुन के थोड़ी सी अनॉयड हो गई. There's nobody here whose child, she said hotly. I have paid 30 पैसा like everyone else. उसने बड़े गर्व से कहा यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है और मैंने 30 पैसे खर्च किए हैं यहाँ तक आने के लिए. द कंडक्टर चिम्ड इन. उसी बीच में कंडक्टर अंदर आ गया. ओ सर, दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम. और उसने मजाक में कहा ये तो बहुत ही ग्रोन अप मैडम है, यानी कि ये एक बहुत ही बड़ी मैडम है. डू यू थिंक अ मेयर गर्ल पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन. क्या आप समझते हैं कि छोटी बच्ची 30 पैसे दे के अपना किराया दे के शहर जा सकती है. वली glanced at angrily at the conductor and said I am not a madam. अब वली ने कहा मैं मैडम नहीं हूँ. यानी वली किसी भी चीज़ से, जैसे बच्चे होते हैं संतुष्ट नहीं होते, उसे छोटा बच्चा को तो भी नाराज़ हो जाती थी, मैडम को तो भी नाराज़ हो जाती थी. I'll remember, the conductor said, mimicking her tone. Everyone laughed and suddenly and gradually वली also joined the laughter. तो उसने कहा मैं ध्यान रखूंगा, आपको मैडम नहीं कहूँगा. कंडक्टर हंसा, साथ में वली और दूसरे पैसेंजर्स भी हंसने लगे. An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Wali, and as the bus started again. जैसे बस चलने लगी तो वो elderly woman जिसने अभी वली को टोका था, बुजुर्ग महिला वली के बगल में आके बैठ गई और बोली क्या तुम बिल्कुल अकेले आई हो. वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव. वली को वो लेडी बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि उसके कान में बड़े बड़े छेद थे जिसमें उसने बहुत ही भद्दे तरीके के ईयरिंग्स पहन रखे थे. उसने पान खा रखा था और उसके ऐसे लग रहा था कि पीक पान की मुंह से निकलने लगेगी. और तो वली को लगा इस औरत से, इस तरह की औरत से कौन बात कर सकता है. तो उसने कहा हाँ मैं अकेले ही यात्रा कर रही हूँ और मैंने टिकट भी लिया है. तो कंडक्टर ने पूछा हाँ ये टाउन जा रही है, इसके बाद 30 पैसे का टिकट भी है. तो वली ने उसी समय कंडक्टर को टोकते हुए कहा तुम अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखते हो. इस बात से सब लोग हंसने लगे और वली भी हंसने लगी. Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation but to buy peppermints, toy balloons. अब जो उसकी पहली यात्रा थी, वो पहली यात्रा उसकी बड़ी मुश्किल से उसने करी थी, बहुत सावधानी पूर्वक मेहनत से उसने पैसे बचाए थे. अपने आप को उसने रोका था, पेपरमेंट की गोलियां नहीं खरीदी, उसने खिलौने नहीं खरीदे, गुब्बारे नहीं खरीदे. और गांव का मेला लगा, उसने तब भी उसका बड़ा मन था कि मैरी गो राउंड नाम के झूले पे झूले, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल रखा और वो सारे पैसे बचा लिए. और उस पैसे से उसने 60 पैसे इकट्ठे किए, एक तरफ जाने के और एक तरफ आने के लिए. आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स बैक नॉलेज. अब पैसे तो इकट्ठे हो गए, अब सबसे बड़ी बात थी अपनी माँ की जानकारी के बिना कैसे वहाँ से निकल आए. और इसने ये भी किया. उसकी माँ जो थी वो 1 बजे से 4 बजे तक हल्की नींद लेती थी और वली को लगता था, वली इसी बीच में जब भी पहले अपने घर से निकल के इधर से उधर घूम लेती थी, ये उसका जो घूमने का इतना पिकनिक मनाने का टाइम होता था, जो भी काम करना होता था वो 1 से 4 के बीच में कर लेती थी. अब उसने सोच लिया था उसको 1.5 घंटा लगेगा आने जाने में, 1 बजे जाएगी तो वो 2:30 बजे तक लौट आएगी और ये सब काम उसको 1 से 4 बजे के बीच में करना है. तो उसने निश्चय किया था कि वो 1 बजे की बस पकड़ लेगी. द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास एन ऑड वे साइड शॉप.
Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or pedestrian crossing the road. बस चली जा रही थी, चलती हुई चली जाती थी, छोटा सा कस्बा निकला, गांव निकला, सड़क के किनारे दुकानें थी, उनको पास करती चली जाती। कभी कभी लगता था सामने से जो वाहन आ रहा बस उस पर चढ़ जाएगी, कभी कभी लगता था जो लोग सड़क पार कर रहे बस उस पर चढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता था। बस सबको पार करते हुए, सबको बचाते हुए चल रही थी। पेड़ कभी कभी लगते थे कि बस की तरफ दौड़ते चले और अचानक रुक जाते थे। तो वली के लिए ये सब, चूंकि पहली बार उसने बस में यात्रा कर रही थी, तो ये सब कुछ नया अनुभव था। सडनली वली क्लैप्ड अ हैंड विद ग्ली। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वाज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड। अचानक वली जोर से ताली बजाने लगी, क्योंकि एक गाय उसने देखी जो अपनी पूंछ उठा के सड़क पे दौड़ रही थी। बस वाला ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहा था, और जितना वो हॉर्न बजाता गाय बस की तरफ ही भागती रहती थी और बस के सामने भाग रही थी। Somehow this was very funny to Wali. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. और वली को खूब हंसी आ रही थी, वो जोर जोर से हंस रही थी जब तक कि उसकी आंखों में आंसू ना आ जाए। कंडक्टर ने कहा कि थोड़े से आंसू कल के लिए भी रख लो, तुम्हें कल भी यात्रा करनी होगी। At last the cow moved off the road and soon the bus came to a railroad crossing. A speck of train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew nearer. आखिर में गाय जो थी किनारे हट गई। अब बस एक रेलवे क्रॉसिंग के पास आ गई। दूर से एक ट्रेन धब्बे की तरह दिखाई पड़ रही थी, जो धीरे धीरे पास आती चली गई और फिर धड़धड़ाते हुए निकल गई, और फिर फाटक खुला और बस आगे बढ़ी। अब बस जो थी वो एक बड़ी चौड़ी सड़क पे चल रही थी, जिसके दोनों तरफ बहुत शानदार दुकानें थी, कपड़ों की दुकानें थी, खिलौनों की दुकानें थी, और हर तरीके से सामान बिक रहा था। वली ने तो अपने जीवन में पहली बार देखा तो वो बहुत खुश हो गए, तालियां बजाने लगी, और उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई और मुंह भी उसका खुला था। Then the bus stopped and everyone got off except वली। फिर बस रुकती है और सारे लोग बस से उतर जाते हैं, वली बैठी रहती है। कंडक्टर उससे कहता है, हे लेडी, अब तुम्हें उतरना है, तो 30 पैसे तुम्हारे थे, तुम्हारी यात्रा पूरी हुई। वली ने कहा, मुझे इसी बस से वापस जाना। उसने अपने जेब से फिर 30 पैसे निकाले। तो उसने कहा, क्या बात है, तुम अभी आई हो, अभी वापस जाना चाहती हो, तुम्हें कहीं और नहीं जाना क्या? तो उसने कहा, नहीं, मुझे वापस जाना है। तो कहता है, तुम्हें बस से उतरो, सामने कितने अच्छे दृश्य हैं। तो कहती, नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं देखूंगी। तो कहता, तुमने बस में आ गई तब तुम्हें डर नहीं लगा? तो कहती, बस में आने में कैसा डर? तो कहता, कोई डरने की कोई बात ही नहीं, तो तुम सामने की दुकान से कुछ जाके पी लो, कुछ खाना पीना खा लो। तो कहती, नहीं, मुझे नहीं खाना, मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहता, कोई बात नहीं, ये ट्रीट मेरी तरफ से, तुम खा लो। वली कहती, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मैं बस में ही बैठी रहूंगी। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. कंडक्टर ने जब उसको टिकट दी तो उसने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान नहीं होगी? तो कहती, नहीं, मेरे लिए कोई परेशान नहीं होगा। तो वो अपनी बात बताना नहीं चाहती थी, अपने मन की बात बोलना नहीं चाहती थी। दोबारा बस स्टार्ट होती है और फिर वो वली वही शानदार दृश्य देखने लगती है जिनको देखते हुए वह आ रही थी। वली wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement and she had felt the first time. वरी बिल्कुल ही बोर नहीं हो रही थी, उसे बड़ा मज़ा आ रहा था, जैसे कि उसे वो आई थी, उसने यात्रा का कितना मज़ा लिया था, वापस लौटते वक्त भी उसको मज़ा आ रहा था। लेकिन अचानक क्या होता है, उसने देखती है सड़क के किनारे एक गाय मरी पड़ी है, और उसको लगता है ये वही गाय है जो जब वो आ रही थी तो बस के आगे दौड़ रही थी। शायद किसी वाहन से टकरा के वो गाय मर गई थी। उसने कंडक्टर से पूछा, क्या ये वही गाय है? कंडक्टर ने कहा, ये वही गाय है। वली जो थी बहुत दुखी हो गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening. As it lay there, legs spread eagled, a fixed stare and in its lifeless eyes. जो अभी एक गाय थी, बिल्कुल जीवित थी, कितनी अच्छी तरह से दौड़ रही थी सड़क पे, कितनी ताकत से। अब वो सड़क पे पैर फैलाए मरी पड़ी थी। उसकी आंखों में एक विस्मय था, शायद किसी वाहन से अचानक टकरा जाने से। और वली की जो अब सारी उसके अंदर उत्साह था वो ठंडा हो गया, बहुत उदास हो गई। अब वो विंडो के बाहर देखना भी नहीं चाह रही थी। वो अपनी सीट पे बैठी रही और थोड़ी देर में 3:40 पे बस वापस गांव पहुंच गई। वो उठी और उतरने लगी। कंडक्टर से कहा उसने कि मैं उम्मीद करती हूँ आपको फिर हम लोग मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड स्माइलिंग। उसने मुस्कुरा के जवाब दिया, यस मैडम, हम लोग फिर मिलेंगे। जब भी तुम्हें बस की यात्रा करनी हो आ जाना, बस 30 पैसे ले आना, किराया ले आना।
शी लाव्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसते हुए उतरी बस से और अपने घर की तरफ चल पड़ी। जब वो घर के पास पहुंची तो उसने देखा उसकी माँ एक आंटी से बात कर रही थी। वो आंटी जो कि एक साउथ स्ट्रीट में रहती थी, बहुत बातूनी थी, बहुत बात करती थी, अपना मुंह कभी बंद ही नहीं करती थी। और आंट ने उसको देखा, वली से बोली तुम कहाँ थी अब तक, और उनको लगा कि वली कोई आंसर नहीं देगी। और तभी उनकी माँ ने जवाब दिया, वली की माँ ने जवाब दिया, सो मैनी थिंग्स इन अ वर्ल्ड अमिस्ट अस इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। उन्होंने कहा, उसकी माँ बात कर रही थी आंटी से, दुनिया में कितनी चीज़ें चलती रहती हैं, हम लोग के अगल बगल, हम लोग उन्हीं के बीच में रहते हैं, और लेकिन हमें हर चीज़ की जानकारी नहीं होती है, और हम लोग कितनी चीज़ें हैं जो समझ भी नहीं पाते हैं, बिल्कुल जान भी नहीं पाते हैं। और वली ने भी उनकी बात सुन के जवाब दिया, हाँ ऐसा है, जबकि वली से वो बात नहीं कर रही थी। उसकी माँ ने पूछा, क्या तुमने क्या कहा? उनको लगा वली ने किस तरह से उनकी बात का जवाब दे दिया। और वलीन का, मैं बस आपकी बात पे हाँ भर रही थी कि ऐसा होता रहता, बहुत सारी चीज़ें जिनके विषय में हम लोग को जानकारी नहीं होती है। वो आंट जो खड़ी थी, आंटी खड़ी थी, उन्होंने कहा कितनी छोटी गर्ल है, लेकिन हर बात में अपने टांग अड़ा देती है। वली मुस्कराई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो लोग उसकी मुस्कुराहट का अर्थ समझे, वो समझे कि वली एक यात्रा करके बस से जा भी चुकी है, वापस भी आ चुकी है, वो नहीं चाहती किसी को पता चले। तो इस स्टोरी का मैसेज क्या है? स्टोरी एक छोटी लड़की की है जो कि अपनी यात्रा पे निकलती है, अनजान होती है, उसके लिए यात्रा कितनी सुखद होती है, और वो आराम से यात्रा कर रही है, लेकिन लौटते लौटते उसको दुख का भी सामना होता है। तो सुख दुख दोनों का अनुभव उसको यात्रा में होता है, और उस छोटी सी बच्ची के मन में क्या प्रभाव पड़ता है, वो वापस आके सब कुछ भूल के फिर अपने घर पे रहने लगती है। So that is all the summary in English and Hindi of this chapter. Don't forget to subscribe the channel. Thank you.